میں آپ کو چند لمحوں کے لیے ایک بار پھر ماضی میں لے جاتا ہوں۔ مارچ 2022 تک اسد مجید امریکہ میں ہمارے سفیر تھے۔ ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی تھی۔ انہوں نے الوداعی ملاقاتیں شروع کر دیں۔ 7 مارچ کو امریکہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو کے ساتھ ان کا الوداعی لنچ تھا۔ لنچ پر اسد مجید نے شکوہ کیا، میری مدت ختم ہو گئی لیکن آپ نے صدر جو بائیڈن کی ہمارے وزیر اعظم سے بات نہیں کرائی۔ یہ سنتے ہی ڈونلڈ لو نے شکووں کی پٹاری کھول دی۔ ان کا کہنا تھا عمران خان نے 2020 کے امریکن صدارتی الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کیا تھا۔ آپ لوگوں کی طرف سے امریکہ مخالف ٹویٹس بھی آتی رہیں اور عمران خان نے فلاں جگہ پر یہ کہہ دیا اور یہ فلاں جگہ پر یہ کہتے رہے، لہٰذا میں صدر کو کس منہ سے فون کرنے کا کہتا، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ میٹنگ ختم ہو گئی۔ سفیر اسد مجید نے واپسی پر ملاقات کا احوال لکھا اور سائفر سیکرٹری خارجہ سہیل محمود کو بھجوا دیا۔ سفیر نے مراسلے کے آخر میں لکھا، ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ امریکی انتظامیہ ہم سے ناراض ہے۔ ہمیں اپنی سفارتکاری پر توجہ دینی ہوگی۔ پروٹوکول کے مطابق ہمارے سفارت خانوں کے زیادہ تر مراسلے سیکرٹری خارجہ، DGISI اور GHQ جاتے ہیں۔ آرمی چیف کا سٹاف مراسلے پڑھ کر اہم ترین کی سمری بناتا ہے اور یہ سمری بعد ازاں آرمی چیف کو بھجوا دی جاتی ہے۔ یہ مراسلہ بھی پروسیس سے گزر کر آرمی چیف تک پہنچ گیا۔ 11 مارچ 2022 کو کامرا ایئر بیس میں J-10C لڑاکا طیاروں کی لانچنگ تھی۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف دونوں اس تقریب میں مدعو تھے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے وہاں یہ مراسلہ وزیر اعظم کو دیا اور ان سے کہا، سر میں آپ کو بار بار عرض کر رہا تھا، آپ ٹویٹس اور بیانات میں احتیاط کیا کریں، آپ اپنی مرضی کیا کریں لیکن اوپنلی بات نہ کیا کریں، آپ اب اس کا نتیجہ دیکھ لیں۔ وزیر اعظم نے مراسلہ کھولا، پڑھا، مسکرائے اور آرمی چیف سے کہا، جنرل صاحب اس قسم کے مراسلے آتے رہتے ہیں، آپ اسے سیریس نہ لیں، اور ساتھ ہی کاغذ لپیٹ کر جیب میں ڈال لیا۔ عمران خان نے بعد ازاں 27 مارچ کو پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں ایک کاغذ لہرا کر کہا، باہر سے حکومت گرانے کی سازش ہو رہی ہے، لکھ کر دھمکی دی گئی ہے۔ وزیر اعظم کی وہ تقریر حیران کن تھی۔ وزارت خارجہ سے لے کر GHQ تک افراتفری مچ گئی اور دھمکی اور سازش کی تلاش شروع ہو گئی۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا یہ کاغذ وہی تھا جو آرمی چیف نے کامرا میں وزیر اعظم کو دیا تھا اور یہ سائفر یا مراسلہ نہیں تھا، یہ محض سمری تھی اور یہ مختلف دفتروں اور میزوں سے ہوتی ہوئی آرمی چیف تک پہنچی تھی اور آرمی چیف نے وہ گڈ فیتھ میں وزیر اعظم کو دکھائی تھی، مگر عمران خان نے اسے سیاسی کارڈ بنا دیا۔ یہ کہانی کا ایک حصہ تھا۔ آپ اب دوسرا حصہ بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ 28 سپتمبر 2022 کو عمران خان اور پرنسپل سیکرٹری اعظم خان اور 30 سپتمبر کو عمران خان، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی آڈیو ریکارڈنگز لیک ہوئیں۔ یہ آڈیوز وزیر اعظم آفس میں ریکارڈ ہوئی تھی اور ان میں وزیر اعظم عمران خان پرنسپل سیکرٹری سے کہہ رہے ہیں، اب ہم نے بس صرف کھیلنا ہے، اس کے اوپر نام نہیں لینا امریکہ کا، صرف کھیلنا ہے کہ یہ تاریخ پہلے سے تھی اس کے اوپر۔ اور اس کے بعد پرنسپل سیکرٹری وزیر اعظم کو مشورہ دیتے ہیں، آپ میٹنگ بلائیں، اس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور فارن سیکرٹری سہیل محمود یہ خط پڑھ دیں، میں اسے ریکارڈ پر لے آؤں گا، منٹس میرے ہاتھ میں ہیں، میں خط کو دھمکی بنا دوں گا۔ عمران خان میٹنگ کی وجہ پوچھتے ہیں تو پرنسپل سیکرٹری بتاتے ہیں، ہمارے پاس خط کی آفیشیل کاپی نہیں ہے، ہمیں اسے آفیشیل بنانے کے لیے میٹنگ کرنی چاہیے۔
वगैरह वगैरह। आप अब अगर कैमरा और खत की बैकग्राउंड को जहन में रखकर इस गुफ्तगू का तज्जिया करें तो आपको महसूस होगा वजीर आजम को जो ही समरी मिली उन्होंने उसी वक्त इस पर खेलने का फैसला कर लिया था। उन्होंने इस खेल में अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को शामिल किया और आजम खान ने उन्हें समरी को ऑफिशियल बनाने का मशवरा देना शुरू कर दिया था। दूसरी ऑडियो में इमरान खान शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को एतमाद में लेते हैं और असद उमर कहते हैं ये तो मीटिंग की ट्रांसक्रिप्शन है, ये लेटर नहीं। और इमरान खान कहते हैं आप इसे छोड़ दो, पब्लिक को लेटर और ट्रांसक्रिप्शन का फर्क पता नहीं। अब सवाल पैदा होता है क्या इसके बाद मीटिंग हुई थी और क्या इसमें सेक्रेटरी खारजा ने वो साइफर पढ़ा था? मेरी मालूमात के मुताबिक मीटिंग हुई थी, लेकिन सेक्रेटरी खारजा ने साइफर पढ़ने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था मैं सरकारी हैसियत में ये नहीं कर सकता, सफारत खानों के साइफर सेक्रेटरी खारजा के लिए होते हैं, हम सिर्फ साइफर्स की समरियां बनाकर मुतअल्लिका महकमों को भिजवाते हैं, हम अपना सिस्टम किसी के लिए भी ओपन नहीं कर सकते। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बाद अज़ा सेक्रेटरी खारजा पर दबाव डाला और सेक्रेटरी खारजा ने ऑफिशियल चैनल से साइफर की समरी वजीर आजम ऑफिस भिजवा दी और ये समरी अब रिकॉर्ड से गायब है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, वजीर आजम ने परेड ग्राउंड के जलसे में समरी लहराई और उसे लेटर करार दे दिया। ताहम असल साइफर 31 मार्च 2022 को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सामने आया। ये इजलास इमरान खान के मुतालबे पर बुलाया गया था। साइफर की कॉपी तमाम शुरका के सामने रखी गई थी, लेकिन वो कॉपी साथ ले जा सकते थे और ना उसके नोट्स बना सकते थे, उसे सिर्फ पढ़ा जा सकता था और वो पढ़ा गया और आखिर में एक मुत्तफिका एलामिया भी जारी किया गया जिसमें ये डिक्लेयर किया गया पाकिस्तान के खिलाफ कोई गैर मुल्की साजिश नहीं हुई। इस मीटिंग के बाद वजीर आजम और आर्मी चीफ की मुलाकात भी हुई थी और इमरान खान ने आर्मी चीफ से कहा था जनरल साहब बस डिमार्श हो गया, ये बात अब यहाँ ख़त्म हो जाएगी और तमाम लोग खुशी खुशी घरों को वापस लौट गए। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, वो ख़त मुरासला या साइफर आगे बढ़ता चला गया और उसमें से न्यूट्रल्स का ताना भी निकला। इम्पोर्टेड हुकूमत के हैशटैग ने भी जन्म लिया, मीर सादिक और मीर जाफर भी पैदा हुए, गद्दार और साजिशी का बयानिया भी बना और आखिर में उससे गीदड़ और शेर भी निकल गया। और आप देखिएगा अब दिसंबर में 4 लोगों के नाम भी लिए जाएंगे। ये थी साइफर कम समरी कम खत की कहानी। लेकिन हम अगर ये इश्यूज वजीर आजम हाउस की ऑडियो लीक्स के सामने रख कर देखें तो हमें चूंटी और हाथी का तनासब महसूस होगा। वजीर आजम का ऑफिस और हाउस दोनों मुल्क की अहम तरीन जगह हैं, वहाँ बकिंग होना और फिर इसका यूं लीक हो जाना ये मुल्की तारीख का खौफनाक तरीन वाक़या है। अफ्रीका के इंतहाई पसमानदा ममालिक में भी ऐसे वाक़यात नहीं होते, जबकि हम दुनिया की वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर पावर हैं और इन ऑडियोज़ की लीक्स ने साबित कर दिया हमारे मुल्क का कोई भी इदारा और कोई भी दफ्तर महफूज नहीं। हमारे अहम तरीन दफ्तरों में जो कुछ हो रहा है वो रिकॉर्ड भी होता है और उसकी रिकॉर्डिंग्स पूरी दुनिया के सामने भी आ सकती हैं। ये भी साबित हो गया मुल्क दुश्मन लोग और टेक्नोलॉजी हमारे वजीर आजम तक भी पहुंच जाती है और हम लीक्स के बाद भी उन्हें पकड़ नहीं सकते। चुनाचे परेशानी की असल बात इमरान खान की गुफ्तगू नहीं, वजीर आजम हाउस और ऑफिस की सिक्योरिटी है और इस वाक़ये ने साबित कर दिया हम इस मामले में बहुत कमज़ोर हैं। अब सवाल ये है ये रिकॉर्डिंग्स किसने की और कैसे की? इसमें चंद इम्कानात पेश किए जा सकते हैं। पहला इम्कान ये है ये हमारे अपने लोगों का काम हो, हमारे इदारों ने बकिंग के आलात लगाए, रिकॉर्डिंग्स की और ये रिकॉर्डिंग्स बाद अज़ा साइबर अटैक या हैकिंग के ज़रिए चोरी हो गई, या फिर सियासी इख्तलाफात
इदारों के अंदर पहुंच चुके हैं और अंदर मौजूद किसी शख्स ने रिकॉर्डिंग्स ओपन कर दी। दूसरा इम्कान, ये काम किसी बैरूनी ताकत या इदारे ने किया। आज के दौर में विजिटिंग कार्ड्स, खतों, बर्तनों और धागों के जरिए भी रिकॉर्डिंग्स की जा सकती हैं। विजिटिंग कार्ड में भी माइक्रोचिप लग जाते हैं और धागे की शक्ल में भी चिप्स आ गए हैं और आप 1.5 किलोमीटर के फासले से लेजर गन के जरिए भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दूर से कोई शख्स लेजर बीम मारता है, लेजर खिड़की के शीशे से अंदर जाता है और सामने मौजूद लोगों की गुफ्तगू रिकॉर्ड हो जाती है। और ताज़ा तरीन टेक्नोलॉजी सैटेलाइट भी है। आप सैटेलाइट के जरिए किसी भी ऐसी डिवाइस को रिकॉर्डिंग मशीन में तब्दील कर सकते हैं जिसमें चिप लगी हो। लिहाजा आज के ज़माने में रिकॉर्डिंग्स ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, लेकिन वीवीआईपी इमारतों और शख्सियात को रिकॉर्डिंग से बचाना ये कमाल होता है और हम बाहैसियत कौम इसमें मार खा रहे हैं। दुनिया भर में सरकारी इमारतों या दफ्तरों में मोबाइल फ़ोन नहीं जा सकते। सदर और वज़ीर आज़म भी मोबाइल फ़ोन कैरी नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान में वेटर्स और स्वीपर्स भी जेब में मोबाइल फ़ोन रखकर सदर और वज़ीर आज़म के दफ्तर में घुस जाते हैं। हमारी पूरी सरकार मोबाइल फ़ोन्स पर चल रही है, लिहाजा फिर सिक्योरिटी कहाँ होगी, मालूमात को खुफिया कहाँ रखा जा सकेगा। और तीसरा इम्कान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वजारत उज़्मा से फारिग होते होते वज़ीर आज़म ऑफिस में रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगा दी, वज़ीर आज़म की रिकॉर्डिंग्स की और वो नशर कर दी और हुकूमत ने जवाब में इमरान खान और आज़म खान की ऑडियो रिलीज़ कर दी। ये 3 इम्कानात हैं। हकीकत क्या है हम दावे से नहीं कह सकते, लेकिन ये चीज़ तय है, इन ऑडियो लीक्स ने मुल्क का रहा सहा भरम भी ख़त्म कर दिया और ये साबित कर दिया पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क है। इसमें सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की गुफ्तगू भी महफूज नहीं। लिहाजा सवाल ये है, क्या हम इन हालात में कायम रह सकते हैं? ये $10 अरब का सवाल है। To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.